আমাৰ শৰীৰত নাহে হয়নে কিন্তু আপোনালোকে সেইটো দিব লাগিব গম পাইছে না হয়নে ক'ব লাগিব যাতে যেনেকৈ আগতে আমি থেৰাপি লোৱাৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ নকৰাৰ কাৰণে বেমাৰবিলাক আমাৰ শৰীৰত আহিছিল নহয় তেতিয়া যাতে এবাৰ শৰীৰৰ পৰা বেমাৰবিলাক ওলাই গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰ আমি আহিব নিদিও সেইকাৰণে আমি থেৰাপিটো ৰেগুলাৰ লৈয়ে থাকিম হয়নে নহয় ঠিক আছে আজি মই মাইক্ৰফোনটো বেছি সময় নলওঁ ঠিক আছে আজি আমাৰ মাজত যেহেতু আমাৰ কোম্পানীৰ CEO মিষ্টাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ছাৰ আছে হয়নে তেখেতক আমি মাইক্ৰফোনটো বেছি সময়ৰ কাৰণে তেখেতৰ হাততে আমি দিম তাৰ আগতে এটা বস্তু কৈ দিছোঁ টোপনি লাগি আছে নেকি আপোনালোকৰ নাই ৰ'বা আৰু টোপনি আহিব নিদিব কিয় জানেনে ছাৰে ঘৰৰ পৰা কেইটাত ওলাইছে কওকচোন ইয়াত যে আজি আহিছে এইটো সময়ত এইখিনি সময়ত ইয়াত আহি পাবৰ কাৰণে ছাৰে ৰাতি 3টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই এয়াৰপৰ্ট আহিছে ৰাতি 3টা বজাত হয়নে আৰু আজিকালি মানুহ কোনেও 12টাৰ আগত নুশুৱে মানে 2 ঘণ্টামান কিবা শুইছে তাৰপিছত আকৌ ৰেডি হৈ আমাৰ এয়াৰপৰ্ট আহিছে তাৰপিছত গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট তাৰ পৰা আপুনি ইয়াত আহিছে ইয়াৰ পৰা আমি একদম আৰু মানে বিভিন্ন জেগাত আমাৰ চেণ্টাৰ আছে লাষ্ট তিনচুকীয়ালৈকে আমি যাম হয়নে আৰু ছাৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ সঁচাকৈ দেখাত যেনেকুৱা ভাল অন্তৰৰ পৰা যেনেকুৱা ভাল অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল তেখেতে আমাৰ ইয়াত নিউৰেপা আমাৰ ইণ্ডিয়াত অনাৰ আগতে এখেতে ক'ত কাম কৰিছিল জানেনে এখেতে এটা ডাঙৰ কোম্পানীত কাম কৰিছিল স্যামছাং কোম্পানীৰ নাম জানে আপোনালোকে হয়নে ইণ্ডিয়া যিটো স্যামছাঙৰ ইণ্ডিয়া যিটো হেড অফিচ তাৰে R&D ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰত এখেতে কাম কৰিছিল আৰু সেইটো চাকৰি কৰাৰ কাৰণে মানে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও বুজি পাব তেনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড চাকৰি কৰাৰ কাৰণে কিমান সপোন কিমান মেহনত কৰিব লগা হয় কিমান সপোন দেখিব লগা হয় কিমান মেহনত কৰিব লগা হয় কিন্তু যিটো চাকৰি ঘৰৰ পৰা গাড়ীৰে আহে লৈ যায় হয়নে কোম্পানী থকা ফ্লেটৰ পৰা ৰান্ধনীবিলাক চব ফেচিলিটি দিয়াৰ পিছতো এই যেতিয়া এনেকুৱা কামটোৰ বিষয়ে ছাৰে শুনিব পাইছিল খবৰ পাইছিল যিটো কামত নিজৰ কাৰণে নহয় আনৰ কাৰণেও কাম কৰিব পাৰি মানৱ সেৱা কৰিব পাৰি আৰু সেইকাৰণেহে তেখেতে স্যামছাঙৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ চাকৰি এটা বাদ দি পেলাই তাৰপিছত তেখেতে আমাৰ নিউৰেপা ইণ্ডিয়াত আনিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াত এখেতৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মোৰ ঘৰত যেনেকৈ মা দেউতা আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে উদ্দেশ্য এইটো ঘৰত মা দেউতা আছে আমাৰ ফেমিলি আছে যাতে অকল আমি ঘৰৰ মা দেউতা বুলি নহয় বাকী যিমান মা দেউতা আছে আমি যাতে সকলোকে এটা মানে সেৱা দিব পাৰোঁ কাম কৰিব পাৰোঁ সেই লক্ষ্যটো আমি আগলৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু ছাৰেও ইমান ডাঙৰ কাম এটা বাদ দি আপোনালোকক সেৱা কৰাৰ কাৰণে নিউৰেপা কোম্পানীটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আনিছিলে হয়নে গতিকে আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ভাগ্যৰ কথা কিবা প্ৰশ্ন কৰিলে আমি উত্তৰ দিম হয়নে যেতিয়া হাত তালি বজাব লাগে তেতিয়া ইয়াতে বজাম ঘৰত গৈ নবজাওঁ নহয় ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ ছাৰ মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াইছোঁ नमस्ते आएगो बहुत थके हुए लग रहे हैं लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए कि नहीं आए आए ना तो चलिए जब तक न्यूरेपा में है तब तक एनर्जी होनी चाहिए ताकि आपके एनर्जी से डर करके बीमारी भाग जाए सही है चलिए सब मिल करके बोलेंगे एक साथ जोर से नमस्ते गुड मॉर्निंग अन्योन्हासेयो पता है क्या होता है अन्योन्हासेयो नहीं मालूम ये जो कंपनी है ये जो मशीन बन के आती है ये सब कोरिया से आई है ना और ये कंपनी भी कहाँ की है साउथ कोरिया की और जैसे हम लोग बोलते हैं नमस्कार नमस्ते गुड मॉर्निंग उसी तरीके से साउथ कोरिया वाले लोग बोलते हैं अन्योन्हासेयो क्या बोलते हैं अन्योन्हासेयो हाँ देखिए अंजन सर को पता है लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है ये बताया होगा आप भूल गए लगता है बताया ना अच्छा तो चलिए हम लोग सब मिलकर के आज कोरियन भाषा सीखेंगे और सबसे पहले बोलेंगे अन्योन्हासेयो अन्योन्हासेयो अरे वाह देखिए कितना अच्छा बोल रहा है कि सामने सब कोई कोरियन बोल रहा है वही देखिए हमारे सेंटर में वैसे जितने भी लोग आते हैं सब कहीं ना कहीं शरीर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बीमार है लेकिन फिर भी जैसे ही आप सेंटर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए खुशी खुशी कैसे होती है कैसे होती है खुशी हंसी से अच्छा अच्छा आसाम में भी ऐसे सेम है मुझे लगा दिल्ली में सिर्फ ऐसा होता है यहाँ भी सेम है
तो वही है कि आप लोगों से मिलने के लिए भी मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि नहीं, मुझे भी जो है सुवालकुची जाना है और आप लोगों से मिलना है, क्योंकि अंजन सर हमेशा हर हफ्ते अपने सेंटर की फोटो भेजते थे, वीडियो भेजते थे कि मेरे सेंटर पे इतने लोग आ रहे हैं। तो मेरा भी मन करता था कि एक बार चल करके सच में देखा जाए कि अंजन सर के सेंटर की फोटो है कि कहीं और की फोटो है। तो इसलिए क्या है कि आज मैं यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को देख रहा हूँ तो सही में आने के बाद आप लोगों के चेहरे को देख के मुझे ऐसा लगा कि आज लगता है सुवालकुची के सबसे खूबसूरत लोगों को यहाँ पे बुलाया है। सबके सब ऐसे लग रहे हैं कि किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे पे स्माइल है। क्या है? स्माइल है। और जो बीमार आदमी होता है उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती, वो लोग एकदम उदास रहते हैं। अरे बीमार हो गया, आज कौन दवाई खानी है? अच्छा 12 बज गए, अभी तो वो दवाई खानी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देख करके किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बीमारी है। ऐसा लगता है कि बीमार लोगों को नहीं बुलाया गया है, आज सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। ऐसा है क्या? थेरेपी लेने वाले भी आप लोग ही हैं या कोई और आते हैं? आप ही आते हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों को देख के थेरेपी लेने की जरूरत लगती नहीं है, सबके सब ठीक हो गए हैं। और मुझे देख के ठीक हो गए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों से मिलके सही में सुबह आप लोगों से मिलने के चक्कर में सुबह 3 बजे उठा हूँ और फटाफट जो है वो गाड़ी बुला करके 4 बजे घर से बाहर आ गया था। 6:30 बजे की फ्लाइट थी, पहुंचा एयरपोर्ट पे और तभी जो है वो चंपक सर से मुलाकात हुई और यहाँ पे आया। लग रहा था कि बहुत थका हुआ होऊंगा, पता नहीं जाऊंगा तो लेक्चर कैसे करूंगा, लेकिन इतने खूबसूरत लोगों को देख करके, इतने खूबसूरत माँ बाबूजी को देख करके मेरी सारी थकावट खत्म हो गई। अब लगता है कि थोड़े भी लेक्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज है कि सबसे पहले आप अगर न्यूरेपा में आते हैं तो सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कि सकारात्मक सोच। क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच कि मैं ठीक हो सकता हूं, न्यूरेपा मुझे अच्छा कर सकता है। कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि न्यूरेपा मुझे अच्छा कर सकता है? एक बार हाथ उठाइए। अरे वाह, सबको लगता है। तो 100% न्यूरेपा आपको अच्छा करेगा, ये गारंटी हम देते हैं आपको 100%। और इसी चीज के लिए आज यहाँ पे आया हूं मैं कि आप लोगों को न्यूरेपा के बारे में जानकारी दे सकूं। अगर हम न्यूरेपा के बारे में बात करें तो वैसे तो ये कंपनी साउथ कोरिया की है, लेकिन 2020 से हम लोगों ने इंडिया में इसके अंदर काम किया और आज हमारे पास में जम्मू से लेकर के साउथ में कर्नाटक तक सेंटर है, गुजरात से लेकर के आसाम तिनसुकिया तक सेंटर है। और हमारे सेंटर में कौन कौन से लोग ठीक हुए पता है? जिनको ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर के लोग ठीक हुए। जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो चलने फिरने की हालत में नहीं था, 2 महीने कोमा में था, उनको भी हम लोगों ने थेरेपी दे करके अच्छा किया। जिनका शुगर लेवल, डायबिटीज 550-600 हुआ करता था, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, उनको हम लोगों ने न्यूरेपा के अंदर ठीक किया है। ब्लड प्रेशर के लोगों को ठीक किया है। जिनको ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था कि आपके रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करवाने होंगे, जिनको हार्ट के ऑपरेशन के लिए बोला था, उनकी बीमारी को भी न्यूरेपा के सेंटर में हम लोगों ने अच्छा किया है। तो आपकी प्रॉब्लम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब चीज के बीच में सबसे जरूरी चीज जो है, न्यूरेपा काम कैसे करता है? तो न्यूरेपा काम करता है धीरे धीरे और कम से कम। अगर आप अपनी बीमारी को यहाँ पे अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अच्छा, कोई पैसा बोला था, पैसा नहीं देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समझ में आया? समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो वो एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे डायरिया हो जाता है या फिर डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये सब बीमारी 2 दिन 4 दिन में होने वाली बीमारी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग आप लोग बैठे हैं, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को थायराइड की बीमारी है, क्या ये बीमारी एक दिन में होती है?
धीरे 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 आपके शरीर में बनता जाता है। और जब पहली बार आपको दिक्कत आती है तो पहले सीधा न्यूरेपा सेंटर पे आते हैं? नहीं, सबसे पहले दवाई के पास जाते, दवाई वाले के पास, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग दवाई वाले के पास जाते हैं। अरे कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, चक्कर सा लग रहा था, कोई दवाई दे दो। और वो क्या है, आपको अच्छे से चेक भी नहीं करता और आपको दवाई दे देता है और आप दवाई खाना शुरू कर देते हैं। एक दवाई खाते हैं, धीरे धीरे करके वो दवाई की आदत लग जाती है। जब दवाई खाते हैं तो आपको जो दर्द हो रहा था वो अच्छा लगता है। सही है कि नहीं है? लेकिन धीरे धीरे करके वो पेन किलर जब खाते हैं तो आपके शरीर को फायदा करता है कि नुकसान करता है? नुकसान करता है। अब मान लीजिए मेरे घुटने में दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवाई की दुकान पे गया, उसको बोला कि मुझे घुटने में बहुत दर्द है, दवाई दे दो। वो दवाई देता है घुटने के दर्द के लिए, मैं खा लेता हूँ। लेकिन क्या वो दवाई खाने के बाद सीधा घुटने के पास चला जाता है? ऐसा कुछ है क्या? वो जब दवाई हम खाते हैं तो अंदर कोई बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर कि वो उसको भेज देगा कि नहीं तुम घुटने के पास जाओ, इसको तो घुटने के लिए खाया। ऐसा कुछ है? जब आप खाएंगे तो वो आपके लीवर के पास भी जाएगा, आपके किडनी के पास भी जाएगा, आपके आंख में भी जाएगा, कान में भी जाएगा, कमर में भी जाएगा, सब जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? और ठीक है, घुटने में दिक्कत है, घुटने के पास पहुंच करके उसने उसको ठीक कर दिया, लेकिन किडनी को उस दवाई की जरूरत थी? लीवर को उस दवाई की जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन आप जबरदस्ती उसको दवाई देंगे तो वो खराब होगा कि नहीं होगा? तो क्या दवाई खाना अच्छा सॉल्यूशन है? नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई खराब चीज है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दवाई खानी चाहिए, जब किसी को बुखार लग जाती है दवाई खाना चाहिए, जब कोई माँ बनती है तो वो जो दवाई ट्रीटमेंट होता है वो करना चाहिए। लेकिन शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, घुटने कमर के दर्द के लिए दवाई खा करके काम नहीं चल सकता। समझ में आया? क्या कभी वो दवाई किसी का बंद होता है? आप 2 साल, 5 साल, 10 साल खा लेते हैं तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब दवाई खाना बंद कर दो, बोलते हैं क्या? लेकिन हमारे सेंटर में थेरेपी लेते लेते आप खुद इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका जब रिपोर्ट आप देंगे तो पता चलेगा कि मैं नॉर्मल हूं। और नॉर्मल होने के बाद दवाई छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। फिर अगर आप लगातार थेरेपी लेते रहेंगे तो दवाई भी छोड़ सकते हैं। और ऐसे 1-2 लोग नहीं है, हजारों लोग हैं जिन्होंने थेरेपी लेने के बाद अपना शरीर अच्छा किया और आज उनको दवाई की जरूरत नहीं है। तो इतनी अच्छी चीज को आपके बीच में लेके जो आए वो इंसान कौन है? कौन लेके आया न्यूरेपा को शिवालकुची में? अच्छा, 2-4 लोगों को नाम है। कौन लेकर के आया है न्यूरेपा को यहाँ पे? अंजन सर। तो एक बार अंजन सर के लिए जोरदार ताली करते हैं, एक बार बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है और बहुत दूर से, अपने घर से दूर आकर के यहाँ पे उन्होंने काम किया है। सही में आप लोग देखें तो बहुत लकी लोग हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि अंजन सर को थेरेपी का बहुत नॉलेज है। ये 2017-2018 से थेरेपी के अंदर काम कर रहे हैं और किस इंसान को कैसे थेरेपी देना चाहिए, किस इंसान की बीमारी कैसे ठीक की जा सकती है, इसके बारे में इन्हें बहुत अच्छे से पता है। अब सोचिए, इतना नॉलेज वाला आदमी अगर शिवालकुची में सेंटर नहीं खोल के गुवाहाटी में सेंटर खोलता तो आप लोगों का नुकसान होता कि नहीं होता? तो वो इंसान अगर यहाँ पे अपने घर परिवार को छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कैसे करेंगे सपोर्ट इनको? 2 तरीके से। पता है कैसे? सबसे पहले लगातार रोज रोज आकर के थेरेपी लेना पड़ेगा आपको। कितने दिन तक? कम से कम 20 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। कितने दिन? 20 दिन से लेके 90 दिन के बीच में। ठीक है? इतने में आपका शरीर अच्छा होगा। नागा नहीं करना है, अब्सेंट नहीं करना है। 1 दिन अब्सेंट करेंगे तो 3 दिन का पीछे नुकसान हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा? 3 दिन का। ठीक है? अगर कभी बारिश बहुत ज्यादा आती है, जैसे आसाम में बहुत बारिश होती है, तो आसाम में बारिश ज्यादा आती है तो क्या उस दिन खाना खाना बंद कर देते हैं?
जो दवाई खाते हैं वो बंद कर देते हैं। कभी ठंड ज्यादा पड़ती है तो क्या खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं। लेकिन थेरेपी सेंटर में जब मर्जी हुआ अब्सेंट कर देते हैं। तो जब सोचिए आप यहाँ पे बीमारी ठीक करने के लिए आ रहे हैं, ये मशीन का भी अपना एक सिस्टम है आपको ठीक करने का। रोज 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 आपको ठीक कर रहा है, आपने जो है वो 2 दिन अब्सेंट कर दिया, तो वो जो फायदा है वो 3 दिन का नुकसान हो गया। समझ में आया? तो इसीलिए सबसे पहले आपको मदद करना है कि रेगुलर थेरेपी लेना है। क्या करना है? रेगुलर थेरेपी लेना है। और जब अच्छे हो जाते हैं तो उसके बारे में टेस्टिमनी बताना है कि पहले मैं कैसा आया था और अब मेरे शरीर में न्यूरेपा से क्या फायदा हुआ है। अच्छा है नहीं अच्छा है? टेस्टिमनी क्यों करने बोलते हैं? ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी भरोसा हो सके कि हाँ हम भी यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। और दूसरा काम क्या करना है कि जब आपके आस पड़ोस में कोई और बीमार लोग हैं तो उसको भी अपने साथ में लेकर के आना है। सही है कि नहीं है? सही है। अब यहाँ पे सेंटर में अंजन सर ने बहुत अच्छे से काम किया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इसलिए हम लोगों ने हमारी कंपनी की तरफ से फाइनलाइज किया कि हम सुआलकुची सेंटर को सर्टिफिकेट देते हैं कि सेंटर ने बेस्ट सेंटर की तरह काम किया। सच में बेस्ट सेंटर की तरह काम किया है ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि आप सबके चेहरे पे जो स्माइल है ये बताती है कि आप जो है वो हमारे अंजन सर के काम से और हमारे एंजल्स के काम से बहुत खुश हैं। खुश हैं कि नहीं है? चलिए वो सर्टिफिकेट एक बार मंगवाने के ऑफिस में रखा है, एक बार जरा सर्टिफिकेट दीजिए प्लीज। तो यही चीज है कि देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं रेगुलर, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि हम आपको अच्छा करेंगे, लेकिन तभी जब आप लगातार आएंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जब समय हुआ आए और जब समय नहीं हुआ तो नहीं आए, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। आपको रेगुलर आना ही पड़ेगा। और इसीलिए सर ने अच्छा काम किया है, इसलिए आज दिल्ली से सर के लिए हेड ऑफिस से खास करके मैं एक सर्टिफिकेट लेके आया हूं जो सर को देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से जो है वो बधाई देंगे। सच में बहुत मेहनत करते हैं हमारे अंजन सर, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी का समय हो। यहाँ पे आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए आते हैं, थेरेपी लेकर के चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो सुबह से लेकर के रात तक यहाँ पे बैठे होते हैं कि काश कोई एक और बंदा तो नहीं आएगा जिसको हम थेरेपी दे करके अच्छा कर सके। और उस सर्दी गर्मी बारिश में भी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जो इंसान है हमारे अंजन सर, एक बार जोरदार तालियां। और ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस सर्विस कि सर ने बहुत अच्छी सर्विस के साथ में आप लोगों की सेवा की है और आने वाले टाइम पे भी और बेटर तरीके से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। उसके लिए सर को आज जो है हमारे हेड ऑफिस की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। 비디오 좀 넣어라.